وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ جی، میرا نام عثمان والا ہے اور میں یہاں اسکول کولونگی کیمپس میں 7ویں جماعت کا طالب علم ہوں۔ میری جماعت کا نام دا فیوچر نیویگیٹرس ہے اور اس کے علاوہ میں ایک انٹرویور ہوں، گرافک ڈیزائنر ہوں اور ویڈیو ایڈیٹر بھی ہوں، اور میں نے 261 انٹرویوز کمپلیٹ کر چکا ہوں۔ 110 انٹرویو ود فورینرس ہو چکے ہیں، اور میرا تعلق پنجاب کے شہر فیصل آباد سے، لیکن ابھی ہم کراچی شفٹ ہو چکے ہیں اور یہاں اسکول کولونگی کیمپس میں ابھی میں مزید سیکھ رہا ہوں۔ جی، مجھے ہمیں یہاں اسکول کے بارے میں یوٹیوب سے ہی پتہ چلا۔ یوٹیوب پہ ہم نے بزنس آئیڈیا سرچ کرتے ہوتے تھے تو سریحان کی ایک ادھر ویڈیو آئی تھی کہ منٹوں میں اپنا بزنس شروع کریں، اس طرح کی ان کی ایک ویڈیو آئی تھی، اور بعد میں جب ہم نے اس کو دیکھا تو ہم نے بعد میں سریحان کو دیکھنا اسٹارٹ کر دیا۔ تو سریحان کو دیکھتے رہے اور بعد میں انہوں نے اپنی ایک ویڈیو میں ریحان اسکول کے بارے میں بتایا۔ پہلے تو وہ لنگر کھانا کھولنے کا سوچ رہے تھے، لیکن بعد میں ان کو پتا چلا کہ لنگر کھانے میں لوگ آئیں گے، کھانا کھا کے چلے جائیں گے، لیکن بعد میں انہوں کے ذہن میں خیال آیا کیوں نہ میں ایک اسکول بناؤں، جو مجھے آتا ہے وہ میں دوسروں کو سکھاؤں۔ بعد میں پھر انہوں نے ایک اسکول بنا دیا ریحان اسکول کولونگی کیمپس کے نام سے، اور پھر ہمیں یوٹیوب سے اس کے بارے میں پتا چلا، اور بعد میں ہم اسی ویڈیو سے انسپائر ہوئے اور پھر سب کو منایا، اینڈ دین ہم ادھر آئے۔ جی، میری والدہ ہی پہلے راضی ہوئی تھی، اور میری والدہ کو سب سے پہلے پتہ چلا تھا ریحان اسکول کے بارے میں۔ وہی ویڈیوز دیکھتی ہوتی تھی اور انہوں کو ریحان کی ویڈیوز نے کافی زیادہ انسپائر کیا، اور پھر آپ کو بھی پتہ ہے کہ بچوں کو تو موبائل سے پڑھنے کا شوق ہوتا ہے، کہیں بھی اگر موبائل کا کام ہو بچے پہلے انسپائر ہو جاتے ہیں، تو تب ہم بھی ڈائریکٹ انسپائر ہو گئے۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ ویڈیو دیکھو تو کافی زیادہ اچھا لگا، پھر ہم نے کہہ دیا کہ چلیں، اور بعد میں پھر پاپا کو منایا تھا، پھر پاپا بھی مان گئے تھے، اور بعد میں کراچی ہم لوگ ابھی 5 افراد ہیں، اور لیکن جب ہم لوگ آئے تھے تب 6 افراد تھے۔ تب میرے جیجا جی بھی آئے تھے ساتھ میں ہمیں ادھر شفٹ کروانے کے لیے، اور گھر لے کر دیا، پھر سارے سودے وغیرہ جب کمپلیٹ ہوئے تب وہ سارا سسٹم کر کے سارا شفٹ کروا کے اینڈ دین وہ چلے گئے تھے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور فیملی آئی تھی ہمارے ادھر، جو کہ ہمارے ادھر ہمسائے تھے، انہوں کو بھی یہ چیز، وہ بھی ہمارے ساتھ آئی تھی، اور وہ بھی 2 مہینے کے بعد وہ بھی چلے گئی تھی، اور بعد میں پھر ابھی ہم 5 افراد ہیں۔
जी, ये जो कदम उठाया ये ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा अच्छा फ़ैसला था और मम्मा के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा फ़ैसला था, क्योंकि मुझे यहाँ स्कूल में तकरीबन 11 मंथ्स हो चुके हैं और इन 11 मंथ्स में जो मैंने सीख लिया वो मैंने वहाँ 11 सालों में नहीं सीखा, जो कि मैंने इस साल में सीख लिया यहाँ स्कूल में। इस साल में मुझे कॉन्फिडेंस आ गया। लाइक अगर पिछले 1 साल पहले की बात करें, कोई भी मेहमान आ जाता था घर में, लाइक मामू हो गए या फिर चाचू, कोई भी आते थे तो शर्मा जाते थे। उनके सामने जाने का कॉन्फिडेंस नहीं था, इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि उनके सामने जाके सलाम ले ले। तो लेकिन जब हम स्कूल में आए तो इधर सबसे पहले हमें कैमरे को फेस करने के, कैमरे के सामने किस तरह से बोलना है, पहले हमने ये सीखा और कॉन्फिडेंस आया। लेकिन जब मेरा पहला इंटरव्यू था तब मैं आपको पता कि जब भी हम स्टार्ट करते हैं कोई काम कैमरे के सामने तो फजूल में हंसी आ जाती है। वो मुझे नहीं पता, आज तक पता भी नहीं चला किसी को कि वो क्यों आ जाती है, शायद कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से। जब मेरा पहला पॉडकास्ट हो रहा था तो सवाल जवाब बिल्कुल सही चल रहे थे, बहुत कोशिश की कि मैं सीरियस रहूं, लेकिन बाद में खुद ब खुद ही हंसी निकल जाती थी और बाद में तकरीबन 5 से 6 पॉडकास्ट में मैं हंसता रहा और बाद में 7वां पॉडकास्ट मेरा हुआ था 5 मिनट का, उसमें भी थोड़ी सी स्माइलिंग थी। और तो इस तरह से पहले तो कैमरा शायद था और इधर आके कैमरे के आगे सामने बोलने का पता चला। जिस तरह से मैं आज बोल रहा हूँ वैसे मैं पहले 1 साल पहले नहीं बोल पाता था। और इसके अलावा कॉन्फिडेंस आ गया कि एक दूसरे से बातचीत किस तरह से करनी। अब कोई भी यानी कि जिस शख्स को मैं जानता भी ना हूँ मैं उससे भी बात कर सकता हूँ, बेशक वो कोई भी हो, चाहे वो इमरान खान हो या फिर कुछ कोई भी। लेकिन मैं उन लोगों के सामने अब क्योंकि आगे पीछे ये होते हैं लोग, काफी ज्यादा लोगों को काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं कि वो ये काम कर लें। लाइक इमरान खान से मिल जाए, उन लोगों को इंट्रोडक्शन करवा दें, लेकिन उन लोगों के अंदर इतना हौसला नहीं होता कि वो ऐसा कर सकें और बाद में वो अपने कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से मार खा जाते हैं। तो लेकिन अब हमारे अंदर की इतना कॉन्फिडेंस आ चुका है कि हम किसी भी शख्स से बात कर सकते हैं, उन लोगों को अपना तारुफ करवा सकते हैं और उन लोगों को अपने बारे में बता सकते हैं। बेहतरीन ज़बरदस्त बात करी आपने बेटा उस्मान। और सबसे बड़ी बात ये हंसी जो आ जाती है तो बच्चों के अंदर जो खौफ होता है वो खौफ बच्चों के अंदर से निकल चुका होता है, इस वजह से हंसी आती है, नहीं तो घबराहट के हमारे पसीने आते हैं। बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है, आपके अंदर कोई बुराई नहीं है, बहुत ज़बरदस्त बात है कि आपको हंसी आती है, पसीने नहीं आते, हमें पसीने आ जाते हैं, हम घबरा जाते हैं। आप माशाल्लाह बहादुर बच्चे हो, माशाल्लाह आपके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है और हमने इस बात को देखा है, जाँचा है और हमें बहुत अच्छा लगा कि आप माशाल्लाह तरक्की की राह पर गामज़न हो और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हो। माशाल्लाह हमारे ऐसे ही बच्चों की हमें ज़रूरत है और हमारे पाकिस्तान को ऐसे ही बच्चों की तलाश है। तो आप अपने बारे में ये बताइए कि आप यहाँ पर कितने अफराद यानी कि अपने घर में आपके कितने अफराद हैं? आपकी वालदा है और आपकी बहनें वगैरह और भाई वगैरह कितने हैं आपके? जी, मेरी बहनें 3 हैं और मैं भाई हूँ और हम 4 बहन-भाई हैं। और इसके अलावा हमारे वहाँ पंजाब वाले घर में वहाँ मेरे अब्बू दादाजी होते थे और फूफा होते थे और ताया होते थे और चाचू होते थे। और कुल मिला के कितने हुए? एक 1, 2, 3 शायद 4, बल्कि 4 हम होते थे और 9 अफराद होते थे। माशाल्लाह ये तो बहुत अच्छी बात है, यानी कि आप पूरे भरे घराने के अंदर से उठकर यहाँ आए हो। आप लोगों को बहुत ज़्यादा याद आती होगी अपने दादी की, चाचू की, ताया-अब्बू की और जो कज़न्स हैं आपके उनकी बहुत ज़्यादा याद आती होगी बेटा? ऐसे याद तो आते, लेकिन इधर भी हमें काफी ज्यादा अच्छे लोग मिल के, लाइक उधर उधर जैसे ही लोग इधर भी हमें मिल के, हम सारे भाई रहते हैं मिल के। और आप भी हमारे जैसा है और आप भी काफी ज्यादा ऐसी सीखते भी रहती हैं और हमें मोटिवेट भी करती हैं। और इसके अलावा भी काफी ज्यादा लोग ऐसे मिल गए जो कि काफी ज्यादा मुखलिस हैं। लाइक हमारे मकान मालिक के गिट्टी जो हैं वो भी काफी ज्यादा अच्छे मिल गए और काफी तो इन सब ने लाइक काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं और अब ज्यादा महसूस नहीं होता।
अच्छा बेटा, आप रेहान स्कूल के बारे में बताइए कि रेहान स्कूल आपको कैसा लगा और उसमें क्या-क्या ख़ुसूसियात ऐसी हैं जो दूसरे स्कूलों में नहीं है? जी हाँ, स्कूल बेसिकली एक ऐसा है, स्कूल कोई स्कूल नहीं, लेकिन ये एक विजन है, और वो विजन है सही मानने वाला का, और इस विजन के साथ ही हम भी अभी काम कर रहे हैं। और यहाँ स्कूल में सबसे पहली बात है कि इधर मोबाइल और एआई के बारे में जो भी दौर है जदीद की जो है पढ़ाई, तो अभी हमें पाकिस्तान में आम हो जानी चाहिए थी, क्योंकि कोई दूसरी कंट्रीज पहले हमसे आगे निकल रही है, वो करी अभी ये स्कूल करवा रहा है, ये स्कूल वो वाली स्टेप भी करवा रहा है, उस तरह से पढ़ा रहा है जो कि जो ये स्कूल करवा रहा है ना, वो तकरीबन 5 से 6 साल बाद पाकिस्तान में आगे जा रहा है। तो ये वाला स्कूल पहले ही फ्यूचर को प्रेजेंट में ला रहा है, तो इसलिए जो फ्यूचर में होगा, फ्यूचर में एआई आप सबकी जॉब्स ले लेंगे। अब तो चाइना ने काफी ज्यादा बना ली है 3D प्रिंटिंग मशीन से और एआई के इस्तेमाल से, और अब तो एआई ने डॉक्टर्स की भी काफी हद हेल्थ केयर फील्ड आ चुकी है, तो एक आगे से सारी जॉब्स कवर कर रही है, और एक की वजह से काफी ज्यादा जॉब्स सामने चली जाती है, आ जाती है। और अगर आप इस टाइप के सीखा तो काफी ज्यादा देर हो जाएगी, और अगर आगे एआई ने अगर आप भी कोई जॉब कर रहे हैं और अगर एआई ने वो भी जॉब हाथ में ले ली, तो फिर आपका क्या होगा? तो आपको ये चाहिए कि आप जल्द से जल्द एआई का इस्तेमाल करना सीखें, और इसको सीखें, क्योंकि अगर आप यही आपकी जॉब ले भी लेते हैं, तो आपको चाहिए कि आप यही तो उस एआई का इस्तेमाल आपको अगर पता होगा, तो आप उससे अपना काम करवा सकते हैं, वो आपका काम छीन लेगी, लेकिन आप उससे अपना काम खुद करवाओगे। तो आप ये स्कूल हमें एआई के बारे में सिखा रहे हैं कि एआई किस तरह से काम करती है, और हमें डिफरेंट डिफरेंट टूल्स के बारे में बता रहे हैं, वीडियो एडिटिंग सिखा रहे हैं, और स्किल्स सिखा रहे हैं जो कि हमारे बाद में काम भी आएंगे। अब पढ़ाई को आप देख लें, पढ़ाई के बाद अगर हम किसी के जॉब अप्लाई करने जाते हैं, तो वो हमारी डिग्री देखते हैं और बाद में कभी हाँ कर देते हैं या फिर ना कर देते हैं। नहीं तो उन्हों के पास ऑप्शन होते थे, और आपकी डिग्री की फिर कोई औकात नहीं होती, और आपकी डिग्री कहीं की भी नहीं रहती। लेकिन अगर आप उन लोगों को जाके बोलेंगे कि मैं एक वीडियो एडिटर हूँ, ग्राफिक डिजाइनर हूँ, मुझे कंप्यूटर का पूरा कुछ पता है, एआई के बारे में सब कुछ पता है, तो वो बंदा मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि वो आपको हायर कर लेगा, क्योंकि आपके पास नहीं पता। अब आप एक डिग्री लेकर देखेंगे उसके पास, तो उसको पता होगा कि उसके पास भी डिग्री होगी, उसके पास भी डिग्री होगी, और आपके बाद जो लोग आएंगे या फिर आपसे पहले जो लोग आए हुए होंगे, उन सबके पास डिग्री होगी, सारा चीजें कॉमन होंगी, तो फिर उसके जो आपको दे रहा है, तो वो आपको क्यों हायर करे? वो सबको हायर कर सकते हैं, क्योंकि सबके पास एक डिग्री है। लेकिन अगर आपके पास स्किल्स साथ साथ होंगे, ग्राफिक डिजाइनिंग, एआई, आपको सब कुछ आता होगा, तो वो बंदा सोचेगा कि इतना स्किल्स बंदा है, जो चीजें मुझे भी पता है उसको पता है, तो वो खुद के लिए ना आपको हायर करना उसकी मजबूरी बन जाएगी। तो इसलिए आप अभी ये सब कुछ चीजें सीखे एआई के बारे में, जो हमारे स्कूल सिखा रहा है, तो यही था। मेन डिफरेंस दूसरे स्कूल से ये सब कुछ नहीं करवा रहे, तो ये था मेन डिफरेंस। जबरदस्त बेटा, ये आपने जो जवाब दिया ना, आपने सारे पाकिस्तान को मुतासिर कर दिया इस बात से, क्योंकि ये जवाब जाहिर बात है कोई और बच्चा नहीं दे सकता, किसी स्कूल का बच्चा नहीं दे सकता है ये जवाब, क्योंकि हम किसी को जब तक अपनी तरफ मुतवज्जा नहीं करेंगे, हम जब तक अपने अपने स्किल को दूसरों के ऊपर जाहिर नहीं करेंगे, तो किस तरह से लोग हमें आगे जॉब देंगे। जब हमारे सामने 10 बंदे और बैठे होंगे, तो उनको उनको छोड़कर हमें क्यों वो जॉब देंगे? आपने बड़ा बेहतरीन जवाब दिया, और ये बात पूरे पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा अमेजिंग है कि आप जैसे बच्चे ये बात कर सकते हैं। माशाल्लाह सर रेहान ने बहुत अच्छा हम लोगों को कॉन्फिडेंस दिया है, जिसकी वजह से हम आज ये बात कर सकते हैं कि हम पूरी दुनिया में, पूरे आलम में हम कहीं पे भी जाके कहीं मात नहीं खाएंगे इंशाल्लाह, और आगे बढ़ने के हमारे पास चांसेस ज़्यादा है। बहुत 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 अच्छी बात आपने करी, मुझे बहुत खुशी है, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। अच्छा, आप अपने बारे में बताइए कि आपको क्या कौन से शायर पसंद है? कुछ शायर पसंद है? शायरी वगैरह करते हैं या नहीं करते? शायर पसंद है आपको? शायर भी हमें पसंद है, और इलामा इकबाल उन्होंने काफी ज्यादा मोटिवेट करती हैं, और जैसे
शायरी थी कि जवानों को पीरों का साथ कर। तो इस तरह से ये भी हमें काफी ज्यादा इम्प्रेस करती है और रिहांस को भी इसी शायरी के ऊपर काम कर रहा है। और अब जो भी इधर नए नए फैसिलिटेटर्स आ रहे हैं वो भी हमारे साथ रहते हैं, हम सीखते हैं। लाइक यहाँ टीचर्स नहीं है जो हमें यहाँ फैसिलिटेटर्स हैं जो कि हमें गाइड करें, जो हमें मोटिवेट करें कि बेटा आप ये टास्क मुकम्मल कर लें। और जब हम लोग करते हैं तो वो हमारे साथ रहते हैं और बाद में अगर बच्चे नहीं आते हैं तो वो भी पूछते हैं। और ऐसे ना हम एक दूसरे से फ्रेंडशिप माहौल में रहते हैं और एक दूसरे से सीखते हैं। ये नहीं कि सिर्फ वही हमें सिखाते हैं, वो खुद से भी ज्यादा से ज्यादा सीखते हैं और हम उनसे से ज्यादा सीखते हैं। जो उनको आता होता है वो हम सीखते हैं, जो हमें आता होता है वो हम उनको सिखाते हैं। तो ये वाला सिस्टम है। माशाल्लाह बेटा, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। आजकल के पीर कहाँ समझते हैं शागिर्दों को उस्ताद कैसे बनाएंगे। वो सर रेहान अल्लाह वाला ने जो ये कदम उठाया है माशाल्लाह बहुत अच्छा है। लेकिन पीर अपना बच्चों को शागिर्द शागिर्द तो बना सकते हैं लेकिन उस्ताद नहीं बना सकते। ये आज के ज़माने का बहुत बड़ा अलमिया है कि बड़े जो हैं बच्चों को उस्ताद मानने के लिए तैयार नहीं होते। आज हमने आप लोगों ने ये कर दिखाया है कि आपको उस्ताद मानना पड़ेगा इंशाल्लाह। तो आप अपने बारे में बताइए, आपको कौन कौन से ममालिक जाने का शौक होगा और कहाँ कहाँ आप घूमना पसंद करेंगे और आपका आपके आगे आइंदा के लिए आपके क्या ख्यालात हैं। जी बेटा। जी, घूमने के लिए तो पूरी दुनिया है और पूरे मुझे ट्रैवलिंग ज़्यादा पसंद भी है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवल करूँ, पूरी दुनिया भी घूम लूँ। लेकिन पूरी दुनिया इतनी बड़ी है कि इसको घूमने के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़िंदगी चाहिए होगी। लेकिन मेरी कोशिश मेरी फेवरेट कंट्रीज़ में से एक ओमान कंट्री और वहाँ पे मैं जाना पसंद करूँगा। और एक कनाडा है और कनाडा में भी जाना पसंद करूँगा। और इस तरह से शौक मुझे ये है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ घूमूँ, क्योंकि जितना इंसान घूमता है ना उतना ही उसका दिमाग खुल जाता है। तो शौक तो मुझे पूरी दुनिया घूमने का ही है। माशाल्लाह बेटा, आपकी सोच बहुत अच्छी है और आगे जाके आपके ख्यालात और बुलंद होंगे इंशाल्लाह। क्योंकि अभी तो आप बहुत छोटे बच्चे हो, अभी आपकी उम्र बहुत ज़्यादा पड़ी है माशाल्लाह। और जैसे जैसे आप बड़े होंगे आपके ख्यालात में और माशाल्लाह और इजाफा होगा और बहुत ज़बरदस्त आप एक इंसान बन के दुनिया में उभरोगे इंशाल्लाह। हमारी भी दुआएं हैं आपके साथ। अच्छा, आपको यहाँ जो सर रेहान ने जो कुछ सिखाया उसके बारे में आप हमें एक्सप्लोर करेंगे, किस तरह से आपने यहाँ पर सीखा है और आगे इसको सिखाने का आपका इरादा है या क्या इरादा है आपका। यस, जो भी हम इधर सीखते हैं ना स्कूल में वो हम एक वीडियो बनाते हैं। और लाइक अगर हम टेक्स्ट वीडियो देखते हैं उससे हमने क्या क्या सीखा वो भी हम वीडियो बनाते हैं। और इसके अलावा मैं अपर के ऊपर अभी काम कर रहा हूँ, तो अपर के बारे में जो मुझे पता है वो उसके ऊपर मैं वीडियो बनाता हूँ और अपने चैनल के ऊपर पोस्ट कर देता हूँ या फिर अपने चैनल पे अपलोड कर देता हूँ और अपने फेसबुक पर भी डाल देता हूँ। और मेरे चैनल का नाम उस्मान अपर वाला है, आप सब्सक्राइब करिएगा और देख भी लीजिएगा। और वहाँ पर जितना भी मुझे पता है, जितना मुझे ख्याल आता है कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊँ, ये चीज़ मैं अपने व्यूअर्स को बताऊँ, अपने ऑडियंस के साथ शेयर करूँ और सारे वीडियोस में बना के उधर पोस्ट कर दूँ। यानी कि आपका इरादा है कि जो आप सीख रहे हो ये औरों को भी सिखाओ, है यही आपका यस। मकसद होगा। यस। अच्छा, आप ये बताइए बेटा कि आपको खाने में क्या क्या चीजें पसंद हैं। जी, मुझे खाने में पिज्ज़ा पसंद है, बर्गर और फास्ट फूड पसंद है। अच्छा, आप अपने अपने बारे में भी बताया आपने और आपने अपने घर वालों के बारे में भी बताया। और ये बताइए, आप वहाँ पर जो थे तो कौन से स्कूल में और कितनी कौन सी क्लास में थे जो यहाँ आके आप 7वीं क्लास में लगे। जी, उधर भी मैं 7 क्लास में ही था, लेकिन इधर इधर भी 7 क्लास में बच्चों को ज़्यादा तवज्जो दी जा रही थी और ज़्यादा सिखाया भी जा रहा था। और वो ज़्यादा वहाँ पर ज़्यादा अच्छा तरीके से सिखाया जा रहा था, तो फिर उधर आके हमने दोबारा स्कूल में एडमिशन ले लिया।
तो 7 क्लास, यहाँ पर जो 7 क्लास है, 7 क्लास का मकसद 7 क्लास नहीं है, बल्कि हमारे जो लेवल के हिसाब से हैं, 1 लेवल 2 लेवल इस तरह से है। 7 क्लास तो इस तरह से नाम रखा गया है कि हाँ भाई 7 क्लास में ये बच्चे, चलो ये छोटे हैं, ये इस क्लास में आ जाएंगे, ये बड़े हैं थोड़े से, इस क्लास में आ जाएंगे। लेकिन हमें जो सिखाया जा रहा है वो 9वीं 10वीं से आगे का सिखाया जा रहा है। क्या ख्याल है आपका? ये बिल्कुल सही। तो इसी तरह से अगर हम साल 1.5 साल 2 साल इसी तरह से और अगर मेहनत करते हैं तो हम कहाँ पहुंचेंगे? आप इसके बारे में कुछ बताना पसंद करेंगे बेटा? ऐसा अगर हम इसी तरह से करते रहे तो हम काफी जल्दी अपनी मेन इनकम तक भी पहुंच जाएंगे और काफी ज्यादा लोग को हम सिखा भी चुके होंगे। क्योंकि जिस तरह से हम वीडियोस बना रहे हैं, अगर हम 2 साल भी लगातार वीडियोस बनाते रहे तो एक साल के वीडियोस होते हैं 365 और दूसरे साल के भी 365 लगा दें तो काफी ज्यादा हमारी वीडियोस होंगी। और अगर कोई उसको देखते हैं तो उनको काफी ज्यादा कुछ सीखने को भी मिलता है और हमारी वजह से काफी ज्यादा जो हमारी जनरेशन है वो भी एजुकेट हो सकती है। तो वीडियोस एक ऐसा जरिया है यूट्यूब के ऊपर, अगर आप वीडियोस डालते हैं जो आने वाली जनरेशन है, जो आगे वाली जनरेशन है, अगर हमें वो वाली चीजें पसंद होगी, क्योंकि हमने अब इस दुनिया में जाना है तो हमारे दिमाग में जो भी सब कुछ इतना इल्म होगा, अगर हम वो सब कुछ लेकर चले जाएंगे तो आने वाली जनरेशन को क्या होगा। तो भी इसलिए हमें ये करना चाहिए कि हम उसको जो भी हमारे दिमाग में इल्म है हम उसको पहले बांटते हैं, पहले उसको खाली कर अपने दिमाग को खाली करने जाए, ताकि जो हमारे आने वाले जनरेशन है उनको भी पता चल सके इस का और वो भी ज्यादातर नॉलेज पा सके। जबरदस्त बेटा, आपके माशाल्लाह ख्यालात बहुत ज्यादा जबरदस्त हैं और बहुत अच्छे बेटे हो आप माशाल्लाह। और इंशाल्लाह होनहारी में आपकी मिसाल नहीं मिल रही। माशाल्लाह बहुत अच्छे जबरदस्त काम करने वाले बच्चे हो और आपका कॉन्फिडेंस देखा जाए तो बहुत ज्यादा जबरदस्त है। हमें बहुत अच्छा लगता है आपकी बात करने का स्टाइल, आपका बात बताने का स्टाइल। मैं इतना नहीं बोल पाती जितना माशाल्लाह आप बोल लेते हो। और आपकी वालदा भी माशाल्लाह ज़बरदस्त एक वुमेन है और उन्होंने बहुत ज़बरदस्त जिम्मेदारियां उठाई हुई हैं माशाल्लाह। हम उन्हें भी खराज तहसीन पेश करते हैं। और आपकी भी माशाल्लाह जो आप कर रहे हैं उसके ऊपर हमें बहुत फ़ख्र है, अपने बच्चों के ऊपर, और आपके ऊपर भी बहुत ज़्यादा फ़ख्र है हमें। हमारे बच्चे माशाल्लाह बहुत मेहनत कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा आगे इंशाल्लाह तरक्की करेंगे। और हमें इस पर नाज है कि हमारे पाकिस्तान में ऐसे बच्चे हैं माशाल्लाह जो समझदारी से काम लेते हुए बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और इंशाल्लाह बहुत जल्द वो दिन दूर नहीं है, बहुत जल्द पाकिस्तान बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाएगा और दुनिया को पीछे छोड़ जाएगा इंशाल्लाह। मेरी दुआ भी है और आप लोग भी दुआ की करें कि पाकिस्तान में इसी तरह से हो और जो बच्चे नहीं आ पा रहे हैं उन्हें भी इससे सबक मिले और वो इस तरफ आए। मेरी भी दिली तमन्ना और दिली दुआ है कि उस तरह से काफी लोग इस तरफ आए। ज़ाहिर सारे तो नहीं आ सकते, मैं भी इस बात को जानती हूँ, लेकिन ज्यादा से ज्यादा आएंगे तो ज्यादा से ज्यादा तरक्की, जल्द से जल्द पाकिस्तान उभरेगा। और इंशाल्लाह सालों में, 2 सालों में, 3 सालों में इंशाल्लाह पाकिस्तान इस जगह पहुंच जाएगा कि इस दुनिया को पीछे छोड़ देगा इंशाल्लाह। मुझे मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला की जात से। अच्छा बेटा, आप कोई अपने बहन भाइयों को और अपने जो पाकिस्तानी और लोग बाहर के लोग हैं उनको कोई पैगाम देना चाहेंगे जिससे हमारे लोग मोटिवेट भी हों और उनके अंदर इस बात का जज्बा आए कि हम भी पाकिस्तान की तरह अपने मुल्कों में भी इस तरह से अपने बच्चों को मोटिवेट कर सकें? जी बेटा। यस, मैं उन लोगों को यही पैगाम देना चाहूँगा कि आप जल्द से जल्द जो भी अभी कोशिश हो रही है कि जो भी होनी चाहिए, एआई के हवाले से अभी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आके भी गुज़र गई, हमने काफ़ी ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ मिस कर दी, काफ़ी ज़्यादा मौके थे हमारे पास तरक्की करने के, लेकिन हमने वो मौके छोड़ दिए। लेकिन उसी तरह एक और मौका है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई, तो आपका इसमें अगर आपने इसको भी क्रैक कर दिया तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। और तो आप जल्द से जल्द एआई के फील्ड में आए और इसको ज्वाइन करें और इसके अंदर आके वर्क स्टार्ट कर लें। तो ये बहुत अच्छी
بہت اچھا انٹرویو دیا بیٹا، آپ کا بہت بہت شکریہ، بہت اچھا انٹرویو دیا آپ نے۔ اور یہ تھے عثمان افق والے، جو بہت زیادہ زبردست انسان بنیں گے انشاءاللہ آئندہ سالوں میں۔ ان سے پاکستان کو بھی اور دنیا کو بھی ان سے بہت زبردست فائدے حاصل ہونے والے ہیں۔ تو ان سے آپ کی ملاقات کرائے انشاءاللہ، اگلی دفعہ ہم پھر ایک زبردست مہمان کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔